Hello friends. I am back with my new lecture of another Indian polity topic, and the topic of today's lecture is the difference between Article 2 and Article 3 of Indian Constitution. But before moving to Article 2 and Article 3, I will explain you Article 1 also. I have not made a slide of Article 1, but definitely Article 1 I'll discuss in short, in brief. So Article 1 says that India, that is Bharat, shall be the union of states. So it defines two things, basically it declares two things, that is the name of the country, both India and Bharat, and the type of polity, that is the union of states. So India is the union of states. Union of states, what does it mean? Union of state means that India territory consists of states. Okay, so there are states, but those states, so India is a union of states. So those states basically come together to form a union of India. Now, this union of states is different than federation of states. What do you mean by federation of states? Federation of states means that which is actually the America. America is federation of states. So the states are there in America, but that is a federation. Federation means those states they come together as a result of an agreement. So, but in India it is union of states. That is, the states in India come together, or they merge together to form a union, but they are not, it is not the result of of an agreement between those states. So there is no agreement in India as such, but there is an agreement in America that all the states come together to form a federation of United States of America. And the second point is federation of states, that the states have no right to secede from the union. That is union of states. In India, the Indian states have no right to secede. Secede means to get out of the union. बाहर नहीं जा सकते हैं. But in America, states can go out of the Union of America also, of the Federation of America. They can go out by passing an appropriate law in their assembly. So that is the difference. In India and America, America is a federation of states, while India is a union of states. Union of states means the states come together, does not come together as a result of an agreement. First point. Second point, the states have no right to secede from the union. So that is why it is union of states. Now we'll move to Article 2 and Article 3. Now, small difference between Article 2 and Article 3. Article 2 is article in case of formation of new states. Now, both the articles talk about formation of new states, but there is a difference. What is the difference? Article 2 talks about those states which are already in existence or which were not in existence. So, states may be in existence or which were not in existence, but those states which are not part of India. So, the territories which are not part of India, so those territories, they can be taken inside the Union of India by means of Article 2. They can be merged in Union, and a new state can be formed by merging those territories by means of Article 2. So those territories which are not in India, so by merging those territories in India and making new states, so Parliament can make new states by taking the territory from outside. So that power or authority is provided by Article 2. Article 3, the formation of changes in the existing states of India. So whatever the changes in the existing territory. So whatever there is in India, so the territory, so the redefining of those territories. For example, like for example, Hyderabad is there. So previously Andhra Pradesh is there, and Telangana get formed out of Andhra Pradesh. So new state get formed out of the present territory of India. So that authority is provided by Article 3. So I hope you have understood the difference. Article 2 outside India, Article 3 inside India. सो बाहर से अगर आप कोई टेरिटरी लेते हो और फिर स्टेट का फॉर्मेशन करते हो तो आर्टिकल 2 के माध्यम से कर सकते हो, और आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट्स को रीडिफाइन करनी, बाउंड्रीज को, उनके नेम को, न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन करना, कुछ दो स्टेट्स को मर्ज करके और दो पार्ट ऑफ स्टेट्स को मर्ज करके, दैट इज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 3. मेजोरिटी इन पार्लियामेंट,
सिंपल मेजोरिटी से ही दोनों बिल पास होंगे, आर्टिकल 2 के लिए भी और आर्टिकल 3 के लिए भी। तो कोई भी स्टेट्स का फॉर्मेशन करना होगा तो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 यूज होकर सिंपल मेजोरिटी से बिल अगर पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो नई स्टेट का निर्माण किया जा सकता है। एग्जाम्पल आर्टिकल 2 में, इफ देयर इज एनी टेरिटरी विच इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया देन दैट विल बी इंक्लूडेड इंडिया अंडर आर्टिकल 2। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया 1975, चोग्याल डायनेस्टी में के अंतर्गत आता था ये। तो ये फिर इंडिया ने इसको अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया था, वहाँ पे प्लेबिसाइड कराया था और प्लेबिसाइड ने सिक्किम ने इंडिया के पार्ट होने के लिए मेजोरिटी लोगों ने वहाँ पे एक्सेंट दिया एंड फाइनली सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन इंडिया इन 1975। अर्लियर इट वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। इफ देयर इज एनी टेरिटरी विच इज पार्ट ऑफ इंडिया देन दैट विल कम अंडर आर्टिकल 3, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। सो आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट ऑल्टरिंग द बाउंड्री। अगर आपको किसी की भी बाउंड्री ऑल्टर करनी है, ठीक है, बाउंड्री ऑल्टर करने का मतलब हुआ कि किसी की बाउंड्री चेंज करनी है। मान लीजिए हैदराबाद, मान लीजिए यूपी को उठा लीजिए आप। सो यूपी के किसी जो अभी बाउंड्री है यूपी की स्टेट बाउंड्री, अगर बाउंड्री को चेंज करना है, यानी कि कोई पर्टिकुलर टेरिटरी आपको बाहर करनी है, कोई पर्टिकुलर टेरिटरी आपको अंदर शामिल करनी है यूपी में, तो बाउंड्री ऑल्टर करने के लिए आर्टिकल 3 यूज कर सकते हो। रिड्यूस द एरिया, एरिया कम करना, एरिया इंक्रीज करना, नेम चेंज करना, है ना। जैसे उड़ीसा का नाम चेंज उड़ीसा हो गया, पहले ORI था, फिर ODISHA कर दिया। तो किसी भी नेम की स्टेट के नेम को चेंज करना। और द लास्ट पॉइंट, द फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। कोई भी 2 स्टेट्स को मर्ज करके आप एक नई स्टेट बनाना। पार्ट ऑफ स्टेट्स को मर्ज करके स्टेट बनाना। कोई टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी को किसी स्टेट के साथ मर्ज करना, और पार्ट ऑफ ए स्टेट, किसी पार्ट ऑफ स्टेट के साथ किसी टेरिटरी को मर्ज करना, और सेपरेशन करना किसी भी टेरिटरी का किसी स्टेट से। तो इस टाइप से अगर कोई भी नई राज्य का निर्माण करते हो आप, तो ये आर्टिकल 3 के माध्यम से आप कर सकते हो। आर्टिकल 3 ऑल्सो कवर्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय मर्जिंग स्टेट विद अनदर स्टेट, मैंने बोला, और यूटी के साथ भी अगर आप मर्ज करते हो तब भी आप स्टेट बना सकते हो। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू यूटी भी बना सकते हो आर्टिकल 3 के माध्यम से बाय मर्जिंग पार्ट ऑफ स्टेट विद अनदर यूटी स्टेट, पार्ट ऑफ स्टेट विद अनदर यूटी, और मर्जिंग 2 और मोर यूटीज और पार्ट ऑफ यूटीज। तो पार्ट ऑफ यूटीज आप मर्ज कर दो, पूरे 2 यूटीज को मर्ज करके एक यूटी बना दो, स्टेट विद यूटी को मर्ज कर दो, पार्ट ऑफ स्टेट विद यूटी मर्ज कर दो, आप यूटी बना सकते हो। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, या तो स्टेट बनाए या यूटी बनाए अपने हिसाब से। तो ये जो जम्मू कश्मीर को डिक्लेयर किया था, स्टेट को यूटी बना दिया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को, ये आर्टिकल 3 के माध्यम से किया गया था। सच अ बिल एज पर आर्टिकल 3 हैज टू बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 3 में जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द करस्पॉन्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना चाह रहे हो, तो आंध्र प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट रेफर करेगा बिल और उसका ओपिनियन सीख करेगा। हाउएवर दैट ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू फॉलो और नॉट टू फॉलो, मतलब बाइंडिंग नहीं है, लेकिन कुछ एक टाइम देगा, उस टाइम में वो ओपिनियन स्टेट लेजिस्लेचर को देनी होगी। अगर नहीं देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ही काम कर सकता है, और देता है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड इट इज हिज डिस्क्रिशन टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से कोई टेरिटरी निकालनी है, बाउंड्री चेंज करनी है, तो कोरस्पॉन्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर को आपको बिल रेफर करना पड़ेगा, मानना ना मानना आपके ऊपर है। इन केस ऑफ ए यूटी, हाउएवर अगर आप यूटी की बाउंड्री चेंज कर रहे हो, या यूटी किसी 2 यूटीज को मर्ज कर रहे हो, यूटी का ही केवल टेरिटरी इंपैक्ट हो रहा है, सो नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द करस्पॉन्डिंग लेजिस्लेचर टू ascertain its views and the parliament can itself take any action as it deems fit। पार्लियामेंट अपने हिसाब से एक्शन ले सकता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में एक चीज हो रहा है, आप आर्टिकल 2 में आप बाहर से टेरिटरी ले सकते हो, आर्टिकल 3 में इनसाइड आप कोई भी ऑल्टरेशन कर सकते हो। हाउएवर अगर आपको, और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि ये डज नॉट कम अंडर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिंपल मेजोरिटी से पास किए जा सकते हैं। हाउएवर टू सीड द इंडियन टेरिटरी टू अनदर कंट्री, अगर आपको अपनी कंट्री की कोई टेरिटरी दूसरी कंट्री को देनी है,
इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगा अंडर आर्टिकल 368। उसके बिना आप यू कैन नॉट सीड योर इंडियन टेरिटरी टू अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश को जिस हिसाब से इन्होंने कुछ एनक्लेव्स दिए थे जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट सेटल हुआ था, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कराया गया था, तभी आप सीड कर सकते हो any Indian territory to another external country. So this is all about Article 2 and Article 3. In the next lecture, we will study another important topic of Indian polity. Till then, thank you very much and do subscribe to my channel and like my lecture. Thank you so much.